ملتان شہر کے فلائی اوورز کی لائٹس تاحال خراب۔ کلمہ چوک فلائی اوور پر لائٹس بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ فلائی اوور پر لائٹ نہ ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہے وسیم شہزاد۔ وسیم بتائے گا۔ بالکل اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے سب سے اہم فلائی اوور پر۔ کلمہ چوک کا فلائی اوور جو ہے وہ گردانا جاتا ہے اور ساتھ ہی اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ دن بھر میں ہزاروں گاڑیاں اس فلائی اوور سے گزرتی ہیں، لیکن رات جیسے ہی گزرتی ہے تو یہاں پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث جو حادثات ہیں وہ بھی معمول بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈکیتی کی واردات ہیں وہ بھی اس روڈ پر معمول ہو چکی ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو میرے میں دکھا سکے تو یہاں پر کھمبے تو موجود ہیں، مگر ان کے اوپر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کلمہ چوک کا مین فلائی اوور ہے جو اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے ساتھ ملاحقہ ہے، مگر روڈ پر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس فلائی اوور پر جو حادثات ہیں وہ آئے روز معمول بن رہے ہیں، جن سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کو اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کو فی الفور اس حوالے سے کوئی انتظامات جو ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ روڈز کی لائٹ جو ہے، فلائی اوور کی لائٹ جو ہے وہ بحال ہو اور شہریوں کو اس حوالے سے ریلیف مل سکے۔ وسیم یہ بتائے گا کہ انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، انتظامیہ کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا گیا اور انتظامیہ کے نوٹس میں بھی یہ بات ڈالی گئی، مگر انتظامیہ کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ شہر کی جو بہت سی لائٹس ہیں وہ خراب ہیں، ان پر کام جاری ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کام شروع ہوگا۔ مگر ابھی تک ملتان کے روڈز کی اور فلائی اوورز کی یہ صورتحال ہے کہ یہاں پر نہ تو ابھی تک کوئی کام جاری ہو سکا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی بلب وغیرہ جو ہے وہ لگائے گئے۔ کھمبے تو موجود ہیں، ان میں بلب بھی ہیں، مگر بلب لگتا ہے فیوز ہو گئے ہیں یا ان کو بدلا نہیں گیا۔ کئی سال سے ایک ہی جیسے بلب ہونے کی وجہ سے بھی شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم، آپ نے اپڈیٹ کیا اس حوالے سے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی۔ سیلابی پانی مختلف علاقوں میں داخل، کئی بستیاں اور سرکاری عمارتیں زیریاب، سینکڑوں ایکڑ پر کاشت فصلیں بھی دریاب برد ہو گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ نے تحصیل علی پور میں تباہی مچا دی، نشیبی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا، گھر اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی کپاس، مونگ اور جوار کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ انتظامیہ دریائے چناب سے بچاؤ کے لیے انتظامات کرتی رہی، لیکن سیلاب دریائے سندھ میں آ گیا جس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ دریائے سندھ میں سیلاب کے باعث خانپور، نرکا، سیت پور، نصرت پور، خان گڑھ، ڈوما، سرکیاں، کندائی کے علاقے شدید متاثر ہوئے۔ سیلابی پانی اسکولوں اور دیہی صحت مراکز میں بھی داخل ہو گیا۔ متاثرین نے علاقے کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب کوٹ ادو میں سیم کے پانی سے تباہ کاریاں، گھروں میں پانی داخل ہونے سے دیواریں گر گئیں، گنا، چاول، گھاس کی فصلیں بھی تباہ، سیم کے پانی سے بدبو اور بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مگر کوٹ ادو شہر کے قریبی 5 بستیوں کا زرعی اور رہائشی رقبہ سیم زدہ ہو چکا ہے۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، گھروں میں سیم کا پانی داخل ہونے پر گھر کی دیواریں زمین بوس ہو رہی ہیں۔ سیم کے پانی کی وجہ سے بستی کھاڑک، ٹالی والا، پرہاڑ والا اور پولی والا سمیت دیگر بستیاں اور 20,000 سے زائد افراد شدید متاثر ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ بدبودار پانی گھروں میں موجود ہے، مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، منتخب نمائندوں نے توجہ نہیں دی۔ تقریباً عرصہ 3 سال سے یہاں یہ سیم کا پانی آ جاتا ہے۔ فرسٹ نمبر پہ تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے نالہ ہزارہ ہے جو ہمیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس کا گیٹ نہیں ہے، گیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی چلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ ہم نے کہا ہے، انتظامیہ سے کہا ہے، کمیٹی میں کہا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اہل علاقہ کا مزید کہنا ہے کہ گھروں کے ساتھ فصلوں کا شدید نقصان ہو رہا ہے، مزید انسانی جانوں کو خطرہ ہے۔ دوائیں گھنا کے لوگ تانگ ہیں، دیوار گھر گئے سارے توڑی پس گئے، دانے پس گئے، بہت مشکل ہے سارے کی طرف پانی چاند میں رکھنے ہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب اور منتخب نمائندوں سے سیوریج نکاسی کا نظام ٹھیک کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تیمور اطہر، روہی، کوٹ ادو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھٹوں پر زگ زیگ ٹیکنالوجی کے استعمال کا کیا بنا؟ جو مالکان ایسا نہیں کرتے ان کے بھٹے 2 ماہ کے لیے سربے مہر کر دیے جائیں۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کے حکم پر عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا گیا، جبکہ پلاسٹک بیگز کی پابندی کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا حکم۔
जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक की दरखास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनीस अली हाशमी पेश हुए, जबकि जुडिशल वाटर कमीशन की तरफ से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि ईंटों के भट्टों पर जिगजैग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का क्या बना। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट कर्जे दे रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो ईंटों के भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुए तो उन्हें 2 माह के लिए बंद कर दें। सरकारी वकील ने कहा कि हम भट्टा मालकान को पहले नोटिस जारी करते हैं, अगर वो अमल नहीं करेंगे तो सर्वे मोहर कर देंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी। हाई कोर्ट ने जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टों को सर्वे मोहर करने का इंदिया दे दिया है। जो मालकान भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं करते उनके भट्टे 2 माह के लिए सर्वे मोहर कर दिए जाएंगे। डीजे खान के कबायली इलाके वाहवा की किस्मत बदल गई। वज़ीर आला पंजाब का वाहवा में 285 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। कमिश्नर साजिद जफर डार की वाहवा आमद, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। गाजी खान साजिद जफर डाल ने बॉयज कॉलेज वाहवा के तामीराती काम का मुआयना किया। उन्होंने गर्ल्स कॉलेज वाहवा की 4 दीवारी मुकम्मल करने की हिदायत की। कमिश्नर ने BMP थाना वाहवा में खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने खुली कचहरी में वाहवा के लिए जारी और तजवीज करदा स्कीमों के बारे में भी आगाही दी। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने कहा कि वजीर आला की हिदायत पर PP 285 से मेगा प्रोजेक्ट्स लाएंगे। आज के दौरे का मकसद वजीर आला की हिदायत पर तरक्याती मंसूबों के लिए मुजवजा जगहों का तफसीली मुआयना करना है। तरक्याती मंसूबों की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करके मंजूरी के लिए वजीर आला को भेजी जाएगी। जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत कर दी है। कमिश्नर ने कहा कि PP 285 के लिए सड़कें, बिल्डिंग्स, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ और दीगर महकमों के मंसूबे शामिल किए जाएंगे। RFC वाहवा को अपग्रेड किया जाएगा। मंसूबे पर 11.5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। कमिश्नर ने गर्ल्स कॉलेज वाहवा के लिए राब्ता सड़क तामीर करने की हिदायत की है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने एक्शन डिवीजन में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से दरख्तों की कटाई का नोटिस, सख्त कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। दरख्तों की कटाई करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने अहकामात जारी कर दिए। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की ज़ेरे सदारत शहर की ब्यूटिफिकेशन बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में PHA की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी ये मिशन है, ग्रीन पाकिस्तान, और लाइकली ग्रीन पंजाब इंशाअल्लाह ताला उसी मिशन को हम लेके आगे चलेंगे। और ग्रीन जो है मुल्तान डिवीजन, उस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। कमिश्नर जावेद अख्तर का कहना था कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब शजरकारी मुहिम में जाती दिलचस्पी रखते हैं। मुल्तान शहर को ग्रीन मुल्तान बनाया जाएगा। सरकारी इदारों में लातादाद दरख्त लगाए जाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारा PHA और हमारी जो डिप्टी कमिश्नर साहबान हैं सारे, ये मिलकर इन तमाम बिल्डिंग्स में इंशाअल्लाह ताला हजारों की तादाद में हम चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला पौधे लगाएंगे। अहम इजलास में चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, डायरेक्टर PHA, डायरेक्टर महकमे जंगलात, एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी भी शरीक हुए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान से आवारा कुत्तों का फिलफौर खात्मा किया जाए। कमिश्नर मुल्तान शहर की बेहतरी के लिए एक्शन, नादहिंदगान से वाजिबात फिलफौर वसूल करने के अहकाम, गैर कानूनी तामीरात की लिस्ट तैयार करने की हिदायत भी कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन जावेद अख्तर महमूद ने अचानक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का दौरा किया और रिकवरी हदाफ मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी राजी वागुजार करवाई जाए, करप्ट अनासर को इबरत का निशाना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाए और खराब स्ट्रीट लाइट्स फाल की जाए। मजबा खानों और बहनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स गैर कानूनी इमारत के खिलाफ कार्रवाई करें। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी, CEO मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इकबाल फरीद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सीवरेज की लाइनें बोसीदा या करप्शन का जाल, वज़ीर आला के शहर में क्राउन फेलियर्स किसका कमाल। डीजे खान के बाद से मुश्किल में पड़ गए। डीजे खान की सड़कों पर जा बजा गढ़े। कमिश्नर और DC दफ्तर के सामने कचहरी रोड भी क्राउन फेलियर की जद में आ गया। 2 दर्जन से ज्यादा मकामात मुतासर। शहर का 70% हिस्सा सीवरेज ज़दा पानी की आमाजगाह बन गया है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला के आबाई शहर डेरा गाजी खान का बुरा हाल होकर रह गया। शहर का 70% हिस्सा गंदे पानी की नजर है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में सीवरेज का अहम तरीन मसला क्राउन फेलियर्स भी हैं। शहर के हर मकाम पर क्राउन फेलियर से भी सीवरेज मुतासिर होकर रह गई है। शहरी कहते हैं मेट्रोपॉलिटन को शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ महकमे ने नाक़िस सीवरेज डाली, जिससे मसला हुआ। शहर डेरा गाजी खान इस टाइम खंडरात का शिकार है। सीवरेज सारी नीचे बैठी हुई है, जगह जगह खड्डे, जिसकी वजह से गुजरों मुश्किलात है, एक्सीडेंट होते हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से इतनी परेशानी है कि यहाँ पर रोज गाड़ियाँ गड़े में चली जाती हैं, मोटरसाइकिल चले जाते हैं, बारिश का पानी जब आता है फिर यहाँ पे पता नहीं लगता कि गड़ा कहाँ पर है। एक आध बार बंदा भी गिर गया है, तो इसके लिए बहुत मसाइल है हमारे लिए। दूसरी जानिब महकमा पब्लिक हेल्थ डेरा गाजी खान ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को गलत करार दे दिया। एसई महकमा पब्लिक हेल्थ डीजी खान इकराम हाशमी कहते हैं महकमा पब्लिक हेल्थ ने बेहतरीन सीवरेज प्लान के तहत 12 साल कबल सीवरेज का मेगा प्रोजेक्ट बनाकर मुतालिका इदारों के हवाले किया। अब इन इदारों ने सीवरेज लाइन्स की सफाई नहीं करनी तो सीवरेज कब तक इसको बर्दाश्त करेगी। शहरी भी सीवरेज में कूड़ा न फेंके, सीवरेज की देखभाल के लिए अलग अदारे का कयाम जरूरी बन गया है। हम जो स्कीमें बनाते हैं वो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कंसर्न्ड म्यूनिसिपल कमेटीज को हैंड ओवर कर देते हैं। इसके बाद उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो उनको मेंटेन करें। लोगों को ये शऊर दिया जाए कि इसमें शापर का ना डालें, कोई सॉलिड ना डालें, और इसके बाद जो गली ग्रेटिंग्स हम लगाते हैं मेन रोड के बाद उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। डेरा गाजी खान में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा क्राउन फेलियर्स के वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। कंगन रोड, प्यारे वाली पुल, पत्थर बाजार और सदर मार्केट समेत डेरा गाजी खान के कमिश्नर और डीसी दफ्तर के सामने कचहरी रोड पर भी क्राउन फेलियर्स आम दिखाई दे रहे हैं, जिससे हादसात का भी खदशा है। दूसरी जानिब मियांवाली में महकमा मावडा की नाअहली और लापरवाही, हरनोली लारी अड्डा पर बिजली का पोल डगमगाने लगा। खस्ता हाल बिजली के पोल पर ट्रांसफार्मर भी नष्ट कर दिया गया। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। इंतजामिया किसी बड़े हादसे के मुंतजिर, शहरियों का आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। पिपला के नवाही इलाका हरनोली के लारी अड्डा और मसरूफ तिजारती मराकज के अकब में बिजली का पोल अरसा दराज से वापटा एहलकारों की तवज्जो का तलबगार है। बिजली के सिंगल पोल पर नस्ब ट्रांसफार्मर किसी भी वक्त गिरकर किसी सानहे का मौजब बन सकता है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाजिया सफी ने खस्ता हाल खंबे को शहरियों की जान के लिए खतरा करार देते हुए इसे फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया है। मामले को हाईलाइट किया गया, लेकिन इस पे जो हमारी वापटा है उन्होंने बिल्कुल भी इस पे अमल दरामद नहीं किया। तो मैं जो हमारे एसडीओ साहिब हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने एसी वाले ऑफिस से बाहर निकलें और अपने मुलाजमीन से पूछें कि कहाँ पे जो पोल्स हैं उनकी हालत कैसी है, ताकि उन्हें पता चले कि कैसे आपकी जो मुलाजमीन है वो कैसी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। शहरियों के मुताबिक महकमा वापडा को बारहा आगाह करने के बावजूद भी कोई सुनवाई न हुई। बिजली का खस्ता हाल पोल आवाम के लिए खतरा बना हुआ है। शहरियों ने एक्सियन वापडा से एसटी वापडा पिपला की इस लापरवाही का नोटिस लेकर बिजली का पोल हंगामी बुनियादों पर तब्दील करने का मुतालबा किया है। जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है पीछे ये ट्रांसफार्मर बिजली का है और ये पोल बिल्कुल टूट चुका है। ये तारों की सहारे की वजह से खड़ा है। ये इधर बहुत मेन गली है, आना जाना भी बहुत है, बच्चों का भी है, माल मवेशी भी बहुत है। कई मरतबा इतला भी की है, फिर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है इस पे। दूसरी जानिब एसडीओ फेस्को पिपला का कहना है कि पोल का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगले 2 रोज तक पोल तब्दील कर दिया जाएगा। सरगोदा में प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन का एहतजाज हुआ। पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन के हमरा कंपनी बाग में इकट्ठ, कंपनी बाग ताशाहीन चौक रैली निकाली गई। पे और सर्विस प्रोटेक्शन बिल के हक में नारेबाजी की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात। सरगोदा ब्लॉक नंबर 1 में लगने वाली आग से मुताल्लिक आगाह किया। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख नदीम खावर ने कहा कि जिले इंतजामिया और मरकजी अंजुमन ताजरान जिले में होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रही है। गुज़िश्ता माह अगस्त में ब्लॉक नंबर 1 में लगने वाली आग के बायस दर्जनों दुकानें खाकिस्तर हुई, जबकि लाखों मालियत का सामान भी राख बन गया। ताजरों की जानिब से हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया गया था कि दुकानदारों का नुकसान पूरा किया जाए। उसी हवाले से गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ्द की मुलाकात हुई। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान भी वफ्द के हमरा मौजूद थे। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख नदीम खावर का कहना था कि आग से होने वाले नुकसान पूरा करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिले इंतजामिया और मरकजी अंजुमन ताजरान नुकसान का तखमीना लगा रही है। हुकूमतों ने मुल्क को 31,000 अरब का मकरूज किया। वफाकी वजीर जरताज गुल की रोही से गुफ्तगू, कहा कि पिछली हुकूमतों का 5,000 अरब का कर्जा उतार चुके हैं।
बाकी वजीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने बहावलपुर का दौरा किया और लेडीज पार्क में पौधा लगाया। रोहित से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाएगी। FTF पर ओपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। तो जब आवाम को जब ये ट्रस्ट होता है कि मेरा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो एक बहादुर और निडर प्राइम मिनिस्टर, उसने अपने खर्चे कम किए हैं और वो 1 रुपए की भी चोरी नहीं करेगा, आवाम के टैक्स पेयर का पैसा आवाम के ऊपर लगाएगा, तो आवाम खुशहाल भी होगी। वफाकी वजीर जरताज गुल ने साबिक हुक्मरानों को करप्ट करार दे दिया। उनका कहना था कि साबिक हुकूमतों ने 31,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया, हम तो वो कर्जा उतारने में लगे हैं। अब तक 5,000 अरब रुपए का कर्जा वापस किया है। आवाम को पता है कि 31 ट्रिलियन 31,000 अरब का कर्जा जो है वो पिछली हुकूमतों ने चढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं चढ़ाया, बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो हुकूमत है, उनके चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वो कर्जा उतारने की कोशिश करे। तो 5,000 अरब का तो पिछला कर्जा हमने वापस किया जो हमने नहीं लिया। वफाकी वजीर ने कहा कि रवां साल 1 अरब दरख्त लगाए जाएंगे, हर शख्स एक पौधा लगाए और 3 साल इसकी आबियारी करे। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील की मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि जनूबी पंजाब में पेपरलेस टेक्नोलॉजी से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात किए गए सेक्रेटरीज की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद से सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली की मुलाकात हुई। मुलाकात में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इनकलाबी कदम है और ये इलाके की तरक्की का जामिन है। पेपरलेस टेक्नोलॉजी से अवाम के मसाइल जल्द हल होंगे। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना था कि तमाम ऑफिसर्स और स्टाफ को पेपरलेस टेक्नोलॉजी बारे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद, अरशद और डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकपानी भी मौजूद थे। मुल्तान की बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस की अदम तैनाती, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। तफसीलात माहिर इमरान की इस रिपोर्ट में। बैंकिंग कोर्ट्स में जजेस की अदम तैनाती से ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद बढ़ने लगी। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 और 3 में जज कई माह से तैनात ना हो सके। बैंकिंग कोर्ट नंबर 2 में इस वक्त ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद 1166 तक पहुंच गई, क्योंकि बैंकिंग कोर्ट के जज राना कमरुज़्ज़मान का तबादला 5 माह कबल हुआ था। यहाँ सूरत हाल बैंकिंग कोर्ट्स की ये है कि यहाँ 3 बैंकिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और कभी ही ऐसा हुआ होगा कि एक वक्त में तीनों जज साहिबान बैठे हुए हों। अदरवाइज यही होता है, कभी एक जज साहब बैठे हैं, कभी 2 होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि तीनों हों। इस तरह बैंकिंग कोर्ट नंबर 3 के जज राव सलीम का तबादला भी रहीम यार खान हो चुका है, जिनकी अदालत में इस वक्त 1276 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। हम काफ़ी अरसे से केस है हमारा, तो वो जब भी पेशी पड़ती है आते हैं तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी हमें जज साहब भी दस्तयाब नहीं होते हैं। ड्यूटी जज भी जो है वो भी उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती। तो एक तो ये जो कोर्ट है ये शहर से बाहर बनी हुई है, तो उस वजह से हमें दूर से आना पड़ता है। तो जब यहाँ आते हैं, यहाँ आगे जज साहब होते नहीं है, फिर पेशी पड़ जाती है। न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स बैंकिंग कोर्ट्स में दूर दराज से आने वाले वकला और साइलिन को परेशानी का सामना है। वकला और साइलिन बैंकिंग कोर्ट्स के जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस और वजारत कानून से मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही। मुल्तान को बेगर फ्री बनाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन, 26 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। रिपोर्ट कर रही है अलिश बासिफ। अन्य बच्चों से काम करवाने और भीख मंगवाने के खिलाफ ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसकी सरबराही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो फयाज अहमद भट्ट ने की। ग्रैंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 26 भिखारी और काम करते बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, जिसके लिए हमने मुल्तान में भी आज ऑपरेशन किया है। 26 बच्चों को रेस्क्यू किया है। अब सबसे पहले तो हम इनकी लीगल कस्टडी लेंगे, जो कि कोर्ट के जरिए होगी, और उसके बाद ये है कि ये बच्चे जो है ना विद इन कोर्ट ही जो है ना वो उनके पेरेंट्स के हवाले किए जाएंगे। बच्चों को नाजन बाईपास, बोस्टन रोड, कैंट मार्केट, डेरा अड्डा, विहारी चौक और जनरल बस स्टैंड से भीख मांगते हुए हिफाजती तहवील में लिया गया, जिनमें 11 साला फरहान, 7 साला शेदू, 8 साला अब्बास, 6 साला तालिब, 11 साला अल्लाह रखा, 10 साला आमिर समेत 20 बच्चे शामिल हैं। मैं गोलबाग से गत्ता उठा रहा था तो धार वाले गाड़ी ने मुझे पकड़ लिया। गत्ता भेज का ना मेरा 500-600 बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फयाज अहमद भट्ट का कहना है कि मुल्तान को बेगर फ्री बनाने और चाइल्ड लेबर के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जानिब से आवाज उठाई जा रही है। इन्होंने बताया कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है और लवाहिकीन की तलाश जारी है। कैमरा मैन राना बिलाल के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।